when RTI is filed, they think that like as if the FIR has been filed against them. All the commissioners, we are 5 commissioners, including the Chief Information Commissioner. We have near about some 1600 cases. That counts to 300 cases per commissioner. So, but we have only one courtroom. मैं तो ये कोर्ट रूम में भी समझाता हूँ, बाहर में भी बोलता हूँ, अवेयरनेस के में भी मैं बोलता हूँ कि आप जो भी आरटीआई केस करता है एक लॉजिक ना, एक रेशनल वे में ना, जो पब्लिक इंटरेस्ट है। ये जैसा आप पूछ रहे थे कि डिजिटाइजेशन का क्या होगा, वो भी हमारे टारगेट में है कि अगले 2 साल में हम पूरे आरटीआई सिस्टम को अरुणाचल में डिजिटाइज करेंगे। सो विल हैव अ पेपरलेस आरटीआई सिस्टम। वो लोग विदिन 30 डेज़ का जो टाइम मिलता है उसको, जो एक्ट का हिसाब से, तो विदिन 30 डेज़ में तो अगर फर्निश किया होता तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर में इतना सारा केस का पेंडिंगनेस तो नहीं होना था। तो कहीं ना कहीं वो लोग का ये नेग्लिजेंस का वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो निकल रहा है सर। वो गलत नहीं होगा तो किसे फाइलिंग करेगा ना, करप्शन तो हुआ होगा। करप्शन होने का वजह से आरटीआई एक्टिविस्ट लोग बहुत ज़्यादा है अरुणाचल में। जब उन लोग करप्शन नहीं होगा ना, आरटीआई एक भी फाइल नहीं करेगा, ये एक्टिविस्ट लोग भी नहीं रहेगा, हम भी रेजिग्नेशन दे देगा। दिस वॉल्यूमिनियस इंफॉर्मेशन जो मांगता है वो वॉल्यूमिनियस को सेक्शन 16 में बोलता है स्पेसिफाई करो, व्हिच इज नॉट अवेयर ऑफ देम। The State Chief Information Commissioner and all the dignitaries present here, the members as well. Once again, let us be enlightened, let us be aware. Thank you. It would be given. Thereafter, special invitees, the former Chief Information Commissioners and other of Global University, Himalayan University, 140 trainees of the APCS and also the law students here, all participating in this on the topic, the impact of RTI Act on transparency and accountability in government. Lieutenant General K.T. Panaji is here with us, a very vision. May I request take your requested respective positions. A very good morning and warm welcome to this inaugural session of the RTI Week Celebration 2025 being conducted here at D. Just note the lighting of the lamp. Ladies and gentlemen, as you can see, our honorable prevails. How we seek truth, we work. Also the host of today's program, he lights the lamp, and with this ceremonious lighting of the lamp, ladies and gentlemen, let us begin this day on a very, very auspicious note. Ladies and gentlemen, as you can see, our special invitee also lighting the lamp. This calls for a beautiful, it is a beautiful day. Thank you so much. Some more wicks. And may I Governor Sir, who has opened the Raj Bhavan for everybody. And he is our beloved K.T. Panaik ji, our governor, a traditional jack as well. A flower bouquet to you, sir. Thank you so much. And this is the Apatani coat being given to the State Information Commission. Gives a memento and a flower bouquet to our guest of honor.
Sandhya Shrinbabu, Honorable State Information Commissioner, doing the honors to our Information Commissioner, and as I mentioned earlier, the pioneer of education in Arunachal Pradesh, former registrar, Rajiv Gandhi University, while Arunachal University. Thank you so much, sir, for your presence. He's associate to Felicitate Madhyam Lindi. Thank you so much. And the felicitation ceremony with this felicitation of our State Information Commissioners, former Chief Information Commissioners, and all the chief guests, the guest of honor and dignitaries on the dais. Listen. We must remember that the success of this act depends on the vigilance and active participation of every citizen. So in this way also, lot many cases file up before the epic. And second thing is the first appellate authority, who is the next boss in command to say the next officer hired to that PIO. DPR sought award of tenders in works departments and some to wherever. By our Dr. Gandhi sir, Major General Dr. Gandhi sir, the State Chief Information Commissioner, and all the dignitaries present here, the members as well. Once again, let us be enlightened, let us be aware. Thank you. Organized a workshop and essay writing competition on the topic, the impact of RTI Act on transparency and accountability in governance, which was held on 6th October 2025 as a part of the RTI Week celebration. And it was there. And we today have the winners here amongst us, the prize winners of the essay writing competition on the topic, as I said, the impact of RTI. For her definitely to be receiving this cash prize of 10. Congratulations, Habu Yanga. We need such Honorable Governor of Arunachal Pradesh. Like to do much to our chief guest, our guest of honor, and fiduciary relationship and unwarranted invasion of privacy. And my question is the state's repeated reliance on the national interest and fiduciary relationship a legitimate protections or a legal bail to conceal the administrative misconduct? And who will determine? thank you so much for gracing this occasion, and hope you spread the light of knowledge, and would like to hand over now the mic to the moderator, Tani Gambos. A cornerstone for good governance. She'll be presenting. In between, if anything comes up, I'll be coming. Please, madam. All I can say is RTI is an enabling act. It is meant for the people so that they can try and voice themselves so that good governance should prevail in the state. So my advice is that they should be responsible when they make the RTI. सोच समझ के RTI करिए. And I am sure the Information Commission and the departments will take action so that they don't indulge in activism. वो ना करें. What's the role of this RTI? Corruption को लेके अरुणाचल में काफ़ी ज़्यादा लोग आवाज़ उठाते हैं, but it's delay काफ़ी हो जाता है सर अरुणाचल में 30 days से ज़्यादा. That is an issue which the Chief Information Commissioner along with the government has to resolve. Delay होता है because sometimes information is not complete, sometimes they go to court, the court takes its own time. So these are processes. But RTI is well-meaning. और दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए. जो करता है ही ऑल्सो हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल कि वो सच बता रहा है और किसी और मुद्दे से उस RTI इन्फॉर्मेशन को नहीं ले रहा है. और जब ये सच सामने आता है तो उसको ठीक करने की जवाबदारी डिपार्टमेंट की है. आपने क्या एडवाइस किया सर? आज काफ़ी लोग थे, स्टूडेंट्स भी है, नए ऑफिसर्स जो रिक्रूट हुआ है अरुणाचल प्रदेश का, वो लोग भी था कि किस तरह से जाना चाहिए? I gave them the same advice
that this is a voice given to the voiceless, RTI. Use it, don't misuse it. One. Secondly, there is a process. उसको follow कीजिए. So from the Information Commission also, there are PIOs who receive these and who have to respond. They should also be sensitive to the company. RTI एक वीक मना रहा है आज 2025. एवरी ईयर इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व. ये आज भी RTI वीक जिसमें गवर्नर साहब सर्किट हुए हैं एज ए चीफ गेस्ट एंड आई एम चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर. तो मैं यही कहूँगा RTI वीक के अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं सब सिटीजन को और कमिश्नर्स स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को. नहीं, मैं ये नहीं कहा, मैंने ये बोला है व्हाट एवर RTI इंफॉर्मेशन इज सॉट और मांगता है उसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर देना चाहिए. और उसके लिए भी मैं टाइमलाइन भी बता दिया 30 डेज़ का अंदर में देना चाहिए. और जो देने दिल नहीं है उसको 15 दिन का अंदर में बोलना चाहिए सो दैट ही कैन प्रिपेयर अपील टू द हायर अथॉरिटी. फर्स्ट अपील सेकेंड अपील होता है उसमें जाने के लिए. मैं ये कभी नहीं बोला है कि नहीं देना. उसी को तो हिदायत दे रहा था क्योंकि मिस यूज़ कहीं हो ही नहीं सकता है. क्योंकि उसको जो ऑफिसर जब अच्छा काम करेगा, अच्छा फंड को यूटिलाइज करेगा, एज पर स्पेसिफिकेशन काम करता है, तो आप उसको इंफॉर्मेशन देने में आप उसको कभी ये नहीं बोल सकता है कि आप ये आदमी एप्लीकेंट मिसयूज़ कर सकता है. जो ऑफिसर गलत करता है वही सोचता होगा वो मिसयूज़ करता है. मैं वही उसको क्लियरफाई किया. मीडिया में काफ़ी दिनों से चर्चा में है RTI स्टैंड्स फॉर राइट टू इनकम. ये कहाँ तक सही है सर? आप मंत्री भी है और एक सीनियर वकील भी है अरुणाचल प्रदेश का. आप किस तरह से देखते हैं इसको? आई डोंट बिलीव इट बिकॉज ये जो मैंने इसीलिए आज ये RTI वीक के एज RTI वीक के जरिए मैंने पब्लिक को यही हिदायत दिया एज ऑफिसर को बोला है कि आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए और एज पर DPR प्रोजेक्ट बनाइए. तो उसमें राइट टू इनकम होने का सवाल ही नहीं उठता है. उसमें ये डीज और मिस नॉर्मल एंड ये लेमैन्स व्यू है. ये 20 years of RTI. तो मैसेज बोलने से तो वो तो कॉमन चीज़ है वो जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने की. बिकॉज ऑफ ओनली सिंगल कोर्ट एट प्रेजेंट हम लोग का बहुत रस होता था. तो एक वन कोर्ट इज कमिंग अप. So with this, we'll able to dispose of much more quicker than earlier. More of cases बोलने से it starts from filing of the RTI application in the PIO level, but then वो filtrate होके आता है कमीशन में. कमीशन में तो by 2024 तक तो roughly it has gone up to 1600 cases pending था. So we are 5 commissioners का इसमें तो average 500 to 600 cases pending था. So now we have we have taken task to the first appellate authority. तो first appellate authority लोगों का पास रिमांड करके we made them to work. तो इसका हिसाब से अभी फिल्ट्रेट करके आता है. अभी इज लेसर नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन द कमीशन. 7 days की सेलिब्रेशन का सर मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या मैसेज जाना? क्या मैसेज? दिस इज बेसिकली फॉर अवेयरनेस एंड काइंड ऑफ रिपोर्ट व्हाट यू हैव डन in your commission all over India, in the Central Information Commission or every state commission में today as you have seen now उन लोगों का रिपोर्ट भी सबमिट किया है which has to be laid in the assembly in fact. डिनाई करने से तो वो उसका रीज़न देखना पड़ेगा और what purpose he has denied. There's denial के लिए होने से there's article section 8 under RTI Act for which there is a denial provision. But if it doesn't suit it, they cannot deny it. So it's for the public interest only, but the concerned department they denied to provide the information within certain period. Certain period means no, like subject matters को आपको देखना पड़ेगा. वो डिनाई करने का है ना, it should be disclosed. डिनाई करने का any criteria कि डिपार्टमेंट का तरफ से इतना certain period के बाद में after certain period के बाद में information वो डिनाई करना. Yes. और तो दैट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो लोग 30 डेज का अंदर में नहीं देने से ही हैज़ टू गो फॉर द अपील. तो सम एक्सटेंट मिस यूज को नहीं हुआ नहीं बोल सकते हैं. लाइक पीपल आई माई सेल्फ वाज PIO एंड आई वर्कड एज ए PIO फॉर एंड पास अपीलेट अथॉरिटी फॉर सो मेनी ईयर्स बिफोर कमिंग टू द कमीशन.
So misuse in the sense they just harassment deke to make some obligation and some make something out of that, like most voluminous information मांग लिया जाता है, which that normal function को नहीं करके जो PIO लोग जो परेशान हो जाता है. So about that हम लोग टाइम नहीं दे पाता है, वो सारा को मिसयूज का फॉर्म में चल रहा है. आपका समय में गांबो साहब अभी क्या चीज़ अच्छा चीज़ आप लोग कमीशन में नया चीज़ कुछ चेंज लेके आए हैं? हम लोग का चेंज में फर्स्ट हम लोग इमीडिएटली आफ्टर वी हैव बीन इंडक्टेड इनटू द कमीशन वी मेड वन गाइडेंस विद ऑल ऑफ 5 कमीशन मेंबर का साथ में कि दिस वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन जो मांगता है वो वॉल्यूमिनस को सेक्शन 16 में बोलता है स्पेसिफाई करो, विच इज नॉट एवर ऑफ देम. एज सच हम लोग कमीशन उसको कमती करो बोल के ऑर्डर नहीं कर सकते. इट विल बी अल्ट्रावायर्स टू दी एक्ट. अल्ट्रावायर्स मीन्स इट विल बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. बट देन PIO शुड रेस्पॉन्ड इट क्विकली साइटिंग दोज एग्जाम्पल. एंड अभी प्रेजेंट टर्म में क्या किया बोलने से जैसे हम अभी बोल रहा था बाई 2024 तक heap of RTI cases piled up in the commission that has been strictly we have reduced it, taking the past appellate into क्या कहेंगे सर, क्या मैसेज आपकी तरफ से? हाँ, मैसेज ये होगा, ये RTI दिवस के अवसर पर मैं सभी अरुणाचल वासी को शुभकामनाएं देता हूं. और जहां तक ये RTI एक्ट है एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट, और इसमें सही तरफ से उसको इस्तेमाल करना चाहिए सभी को. और जहां तक जो गवर्नमेंट का साइड से भी जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनका सबसे बेहतर ये होगा कि सबसे ज़्यादा सुओ मोटो डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 2 पर करे, और तब बार्डन कमीशन पर कम भी पड़ेगा. और जहाँ तक जो एक्टिविस्ट है आप करें, लेकिन उसमें एक आपका एथिकल बेस होके करना बहुत अच्छा होगा. देश का और स्टेट का प्रगति को याद रखते हुए और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको देखते हुए करना अच्छा होगा मेरा. So apart from rest of the country, Arunachal Pradesh is also celebrating this right to information week celebration because it's 20 years. 2005 this act has been implemented. It came in power, Right to Information Act, and now the state information commissioners here in Legislative Assembly DK Auditorium Hall, these are the right RTI activists of Arunachal Pradesh. We will know regarding this RTI Act, and it has been blamed sometimes in Arunachal Pradesh that this act has been misused for personal grudge or some personal interest. ये जो वीक सेलिब्रेशन चल रही है क्या है हो रहा है? हाँ, आज ये हम लोग को इनवाइट किया है और हम लोग का RTI एक्टिविस्ट टीम को ना, ये भी लिमिट में हम लोग को दिया है 10 आदमी का ना. एक्चुअली हम लोग मेरा बहुत आदमी आना था लेकिन कम इनवाइट किया है, फिर भी अच्छा लगा हम लोग ना. और ये एक्चुअली बोलने से पहले ना 2016-17 में जोराम बगी सर भी अभी आया था. उस समय में हर साल में करता था ऐसे सेलिब्रेशन ना, और अभी 6 इयर्स का बाद में आज कर रहा है. 6 इयर्स का बाद में. और हम लोग बीच में भी बोला ये सब सेलिब्रेशन करना है, साल में कितना आता है उन लोग उदय करके भी बताता है. पहले बताया था जैसे कि हम लोग का चालान बढ़ाता है 200 रुपया 50 रुपीज़, और आपका 10,000 20,000 चालान बढ़ा के हम लोग जो उन लोग अकाउंट पैसे डाल देते हैं वो सब ऑडिट करके भी यहाँ में बता देता है. यहाँ में ना पहले अच्छा से चला है, हम लोग सर्टिफिकेट भी मिला था, लेकिन आज का भी ये अच्छा है और अच्छा से आज करा रहा है. और हम लोग विश्वास है और अच्छा करेगा, नेक्स्ट साल को भी करेगा वो करना. आप लोग जो फाइल करते हैं रिपोर्ट PIO सही से आप देते हैं, रिपोर्ट देते हैं आप? सही में नहीं देता है. सही में नहीं देने का वजह से कोर्ट में केस बहुत ज़्यादा है. हाँ, अभी भी बोल रहा था तो केस बहुत ज़्यादा है ना. PIO लोग केयरलेस करते हैं. कुछ लोग अच्छा है, 50% PIO लोग अच्छा है, 50% लोग केयरलेस. हाँ, जो करना है करो. अच्छा, ये जो एलिगेशन लगती है पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अरुणाचल में काफ़ी होता है ऐसा? पर्सनल ये तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब में ना. और आज भी बोल रहा था ऐसे तो नहीं होना चाहिए, वो गलत नहीं होगा तो किसे फाइलिंग करेगा ना. करप्शन तो हुआ होगा.
करप्शन होने का वजह से आरटीआई एक्टिविस्ट लोग बहुत ज़्यादा है अरुणाचल में। जब उन लोग करप्शन नहीं होगा ना, आरटीआई एक भी फाइल नहीं करेगा, ये एक्टिविस्ट लोग भी नहीं रहेगा, हम भी रेजिग्नेशन दे देगा प्रेसिडेंट को। हाँ यही है, आप प्रेजेंट हैं। हाँ हम भी रेजिग्नेशन दे देगा। आप क्या कहेंगे अच्छा सर? काम कैसा हाँ ये जो आज स्पीच आपने सुना? ओके सर, माई सेल्फ तामची गुंगते, और हम भी आई थिंक लास्ट 2 ईयर्स से हम भी ये आरटीआई फाइलिंग कर रहा है। तो सर आज का प्रोग्राम के बारे तो हम लोग क्या बोलेगा, पब्लिक का अवेयरनेस के लिए ही प्रोग्राम किया है, तो उसके लिए हम लोग को भी इनवाइट किया है, तो उसके लिए हम लोग भी अटेंड कर रहा है। तो यह आज का प्रोग्राम तो मेरा हिसाब से तो अच्छा चल रहा है। जितना अवेयरनेस करना था वो चीज़ को ज़रा बड़ा जो चीफ गेस्ट आया है वो लोग अच्छा से अवेयरनेस कर रहा है। सही से होता है, सही से आप लोग को दिया जाता है इन्फॉर्मेशन? पीआई लोग घुमाते सर पीआईओ का रिगार्डिंग में तो सर क्या बोलेगा, अगर वो लोग विदिन 30 डेज़ का जो टाइम मिलता है उसको, जो एक्ट का हिसाब से, तो विदिन 30 डेज़ में तो अगर फर्निश किया होता तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर में इतना सारा केस का पेंडिंगनेस तो नहीं होना था। तो कहीं ना कहीं वो लोग का ये नेग्लिजेंस का वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम तो निकल रहा है सर। तो मेरा कहना तो वही होगा सर, पब्लिक ये आरटीआई एक्ट जो एक्चुअली क्या है, पब्लिक का ट्रांसपेरेंसी के लिए है, तो उसको हम लोग जब इम्प्लीमेंट रूल का हिसाब से हम लोग फाइलिंग करता है तो पीआईओ भी रूल का हिसाब से अपना हिसाब से काम करने से अच्छा है। इंजीनियर लोग, डिपार्टमेंट के लोग घुमाते होंगे आपको डॉक्यूमेंट्स? अरे सर इसका वजह से तो अभी भी इतना सारा पेंडिंगनेस है केस कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अंदर में है। तो हम लोग तो पीआईओ लोग से भी यही रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप लोग गलती ही नहीं किया है या सही किया है या गलती किया है, इन्फॉर्मेशन आपका पास अवेलेबल है तो आप विदिन 30 डेज़ में फर्निश करना चाहिए। तब आप लोग को भी हम लोग का गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था 30 डेज़ का अंदर में, जो हम लोग को डॉक्यूमेंट्स का जो फीस देना होता है उसको आप लोग को भी टाइम में मिलेगा और गवर्नमेंट को भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रेवेन्यू मिलते रहेगा। फाइन इम्पोज करते हैं यहाँ पे 25,000 जो फाइन होता है? हाँ इम्पोज तो करता है। तो आजकल ये टेन्योर का इंफॉर्मेशन कमिश्नर में तो हम रियरली देखने को मिलता है। लास्ट प्रीवियस टेन्योर लोग का तो बहुत सही था। वो लोग का सा गुंजुम हैदर सर था, रिंचिन दोरजी सर था, सोनम युद्धर मैडम था। उस समय में मेरा हिसाब से सिस्टम और भी पीआईओ को ज़्यादा प्रेशर दिया जाता था कि आप लोग एक्ट को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो इस बार का टेन्योर में सर वो चीज़ थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो ये ठीक है, ये हमारे साथ आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं जो आज आरटीआई के 20 साल होने पे यहाँ पे आए हैं, और ये एलिगेशन भी लगते हैं आरटीआई कि यहाँ पे पीआईओस सही से इन्फॉर्मेशन जल्द 30 डेज़ में इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। कभी कभार उन पर फाइन भी लगाया जाता है, लेकिन इस टेन्योर को लेके कभी अभी तक ये फाइन नहीं देखा गया पीआईओस के ऊपर, अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर जो 25,000 का फाइन है। युवराज मेहता फॉर इंडिया टुडे फ्रॉम ईटानगर स्टेट। थैंक यू सर। रिगार्डिंग दिस आज की सर ये जो सेलिब्रेशन है, हाँ जी, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक तो आरटीआई वीक हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि जो आरटीआई की अहमियत है, दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इसके तहत अभी जिस तरह से सिटीज़न को वो राइट मिला है कि एक पब्लिक अथॉरिटी को क्वेश्चन करने का, जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखने का, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोविजन। एंड दिस आरटीआई वीक सेलिब्रेशन एनुअली बेसिकली रिमाइंड्स अस कि याद दिलाता है कि भाई ये एक्ट है, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और सही जवाब इसका आप देना चाहिए। तो आज आपने देखा होगा ऑडियंस जो आए हैं उसमें मोस्टली ऑफिसर्स हैं जो अभी या तो पीआईओ है या पीआईओ बनेंगे फ्यूचर में, तो उनको आरटीआई के जो प्रोविजंस है उनके बारे में ज्ञान जो है मिलेगा, ताकि जब इंफॉर्मेशन सीकर्स इनके पास आते हैं तो दे शुड नो हाउ टू हैंडल द इशू। तो अरुणाचल में क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ पूरा प्रोविजंस का नहीं है, जिसकी वजह से आरटीआई बोलती है वो घबरा जाते हैं, और घबराहट में या तो जवाब नहीं देते, जवाब देते तो गलत जवाब देते। तो उसको अभी जो है हम लोग चैनलाइज कर रहे हैं, डिजिटल भी करेंगे सर, कुछ कोड रूम बना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मकसद यही है कि एक तो जो जानकारी अगर और सिखलाई जो है, जैसे हम अभी वर्कशॉप कर रहे हैं, इसके ज़रिए क्या होगा कि पीआईओ ऑफिसर्स लोग को समझ में आ गया कि कैसे इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करना है, उसको कैसे शेयर करना है। जैसे आजकल का ये जो हार्ड कॉपी देना ज़रूरी नहीं है, आप सॉफ्ट कॉपी में भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सुओ मोटो मतलब पहले ही आप अपने वेबसाइट में डाल के रख दो इन्फॉर्मेशन, तो आपको खुद जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कोई मांगने आता है तो आप वेब लिंक दे दो, उसको साइट लिंक दे दो,
बोलो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, इतना ही करना है। लास्ट आपका मैसेज क्या रहेगा फॉर द एप्लीकेंट्स? नहीं, उसी प्रकार ये जैसा आप पूछ रहे थे कि डिजिटाइजेशन का क्या होगा, वो भी हमारे टारगेट में है कि अगले 2 साल में हम पूरे आरटीआई सिस्टम को अरुणाचल में डिजिटाइज करेंगे। सो विल हैव अ पेपरलेस आरटीआई सिस्टम, ठीक है। और हाँ, एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Your message to the RTI applicants that don't use it as a tool of Yes, blackmail, absolutely. revenge. Yes, absolutely. Because you see, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया है टू कीप अ चेक ऑन द पब्लिक अथॉरिटीज़, आप उसको मिसयूज़ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई इन माई ओपनिंग रिमार्क ऑल्सो आई सेड दैट यू मस्ट यूटिलाइज दिस प्रोविजन एथिकली, ओके, इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट and not for personal advertisement. ये ज़रूरी है। Celebrating the RTI week, it's to sensitize the people, right from young minds to the bureaucrats, about the implementation of the Right to Information Act 2005. That was it. So we have conducted seminars, workshops in colleges, and then we have had essay writing competitions regarding the RTI Act. And today, you might have seen there are all the newly recruited APCS officers of 2025 also. We have invited them, and then we have teamed up with different colleges, and then here in the administrative reform institution also with the government of Arunachal Pradesh. So that was it, just to sensitize the use of the RTI Act in the state of Arunachal Pradesh. Is coming up like new courtroom, and you are going to digitize your RTI. What's going on? Yes, the present scenario is like all the commissioners. We are 5 commissioners, including the Chief Information Commissioner. We have near about some 1600 cases. That counts to 300 cases per commissioner. So, but we have only one courtroom. So now 5 commissioners cannot be taking court in a single room with 300 different cases each. So that is one drawback that is constraining the commission to take up the hearings within the stipulated time in delivering the judgment. So we have approached the government of Arunachal Pradesh, and the government of Arunachal Pradesh was generous enough, kind enough to give us funds. So another courtroom is coming up. If the other courtroom comes up, we would be fastening up the hearings. Now in my court, especially in my court, I have 300 plus cases, but I get 2 slots per week only to hear. Now 300-400 cases, 2 slots in a week is not sufficient. Lastly, what message you will give to the RTI activists? Because sometimes it's a personal grudge also, interest also, sometimes motivation from what you want to say. Yes, what I have seen here in Arunachal Pradesh is there are so many RTI activists, so-called RTI activists. They file very illogical applications also. Like some of them would be filing the RTI application for 8-9 schemes for 5, 10, 15 years also. Now we have to know that in one scheme, in certain districts, there would be 200-300 projects. So now when you file application for 7-8 schemes, just imagine how many thousands of projects would be there. And then the PIO is not, the office of the PIO is basically established for public works, not like RTI is just a recent thing. So besides, but the PIO should provide the information within time, but the activists also should be very specific in their application, because section 6 of the RTI Act 2005 says that an application should be very specific, not vexatious, not running into so many years. Like जैसे एक सादा से एग्जांपल मैं बता दूं, अगर आपको कोई स्कीम आया, कोई प्रोजेक्ट आया, उसमें आपको कुछ करप्ट प्रैक्टिस, डिस्क्रिपेंसीज दिखाई या सोच भी रहा होता है, तो आप वो पर्टिकुलर स्कीम का प्रोजेक्ट का ऊपर आरटीआई कीजिए, ना कि उस डिवीज़न में या उस सारा डिपार्टमेंट में साल में
ना फंड्स डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए आया. यू आर जस्ट बीटिंग इन ऑन द बुश कि कुछ गलती किया भी होगा. हाँ, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द RTI एक्ट. ठीक है, क्लियर है सर. आज की कैसा रहा सर, आज की आपकी RTI सर, आज की कैसा रहा सर आपके RTI वीक सेलिब्रेशन? बहुत ही बढ़िया. और इट वाज मैंने फुल पैक है. और व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीक सेलिब्रेशन? क्या ऑब्जेक्टिव था सर? ये 20th ईयर्स ऑफ RTI 2005 से लागू हुआ है. ये 20th ईयर, एवरी ईयर होता है ये RTI वीक. तो आज का जो इवेंट है ये मेन इवेंट है, अदरवाइज 12 तक है. सर क्या क्या आप लोग डिजिटल कर रहे हैं, नया कोर्ट रूम आ रहा है, क्या क्या हो रहा है आपके कमीशन? अभी कोर्ट रूम अभी एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अभी सेकेंड कोर्ट रूम आ रहा है. उसमें तो केसेस बहुत सारा पेंडिंग हो रहा है. तो केस फिर सिंगल कोर्ट रूम से 5 कमिश्नर्स है. तो एक कमिश्नर को अगर डिवाइड करने से एक ही दिन मिलता है, तो केसेस उससे से पेंडिंग हो जाता है. तो 2 कोर्ट होने से फिर डिवाइड हो जाएगा. तो केसेस जो पेंडेंसी है जल्दी वो से डिस्पोज हो जाएगा. मैसेज रहेगा पब्लिक को, जो एप्लीकेंट्स हैं RTI के, क्या मैसेज रहेगा? फ्री ऑफ, जैसे कि आपने वेस्टेड इंटरेस्ट ना करके पब्लिक वेलफेयर में करना, क्या है? हाँ, वही वो हमेशा मैं तो ये कोर्ट रूम में भी समझाता हूँ, बाहर में भी बोलता हूँ, अवेयरनेस के में भी मैं बोलता हूँ कि आप जो भी RTI केसेस करता है एक लॉजिक ना, एक रेशनल वे में ना, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो लार्जर इंटरेस्ट है, वो डेवलपमेंट प्रोसेस में जहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि करप्शन होने का चांस है, करप्शन हो रहा है, उसमें आप RTI वगैरह जो केसेस फाइल करने से तो एक जो पेंडेंसी है वो भी कम रहेगा. उसका बाद जो जानकारी जो देने वाला उनके लिए भी इजी होगा. ऐसा नहीं है कि आप RTI फाइल नहीं कर सकते हैं, नहीं करना है, लेकिन आप थोड़ा लॉजिक सबको ध्यान में देके ना, पब्लिक को भी, ऑफिसर्स को. थैंक यू. तो हमारे साथ पूर्व स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं गुमजुम हैदर जी, जिन्होंने आज टेक्निकल सेशन में भाग लिया. सर आज कैसा लगा सर यहाँ पे आपको? सबसे पहले RTI वीक, तो आज RTI वीक मनाया, एंड आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड एज वन ऑफ द स्पीकर, वन ऑफ द रिसोर्स पर्सन टू स्पीक ऑन सेक्शन 18, 19 and 20 of Right to Information Act 2005 by the Major General retired जारकिन गमलिन साहब. और आके बहुत अच्छा लगा, एंड टू इंटरेक्ट विद द यंग ऑफिसर्स of Arunachal Pradesh, newly recruited young officers, and also the law students from Jarvam Gamlin Law College and Rajiv Gandhi University LLM students. It was wonderful. It was wonderful. टाइम ऐसा टाइप का अवेयरनेस होती थी सर? We have conducted lots of awareness camp. I think like we have done most. Probably we have covered entire state in district headquarters, and also in some blocks we have tried to create awareness on right to information. People, some public information officer, they think that when RTI is filed, they think that like as if the FIR has been filed against them, as if some cases has been filed against. RTI is nothing but just tools to know the things what is happening. It is RTI is right to information. Right to information is to know the things what is happening. That is all. There is nothing like you can hide, or you should not furnish information to the appellant. Your message to the applicants, RTI activity, because it's sometimes as a tool, as a blackmailing tool. Yeah, there cannot be a blackmailing tool there, but then it seems some of the youths, they are resorting to this kind of stuffs, blackmail. Unless you have, as an officer, unless you haven't done any corruption, any wrong, and if you have constructed the road, constructed the bridges, schools, as per specification of the DPR, there is nothing to be worried about. RTI is just Information Act. It has been installed in 2005, and it has been amended by 2019. And the act has been sometimes we are seeing that some people are misusing.
So other than that, it is a very good tool to avoid corruptions, and the people are interested to know their rights, and in that count, I am supporting the act very well. Favor this act 20 years, it's 20 years, it's a good act by the government. Yeah, it will be a good initiative by the government, and the RTA information is going very well, and the people are using it for their rights. So regarding awareness in your Himalayan University, do your students also know about this act? Any awareness? Yeah. We are having our LLB students and BA LLB students are there. So we are conducting them. There are a lot of informative sessions, and we are giving them a lot of opportunity to interact related to the Information Act as well. The students came from Yeah, we are around 30.